Do you know that you can know all the GK, all the comprehension tricks and still fail that? Not because your knowledge is not enough, but because you're not able to complete the paper on time. And this is exactly what I'll be talking in today's video. So you basically have 120 questions and 120 minutes. The point is how to manage time and complete the paper on time. So if you have just started या अभी तुम्हें तैयारी करते हुए ज़्यादा महीने नहीं हुए, it's very normal for you to struggle in this problem. A lot of students face this problem each year. ठीक है? When I started with my preparation, I was not able to complete my mocks on time, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते थे and ultimately मार्क्स कम आते थे. But you cannot afford to do this mistake over and over again. So what to do? Now understand that you have to dedicate specific time limits to each section. There is a general understanding कि लगभग इतना time you can dedicate to each section. Now it's very important to stick to these limits because you have to attempt each section. You cannot think कि मैं एक section पूरा कर लूँगा and then only I'll move to the other one. This is the wrong approach. Let's just say कि मैंने decide किया that I'll dedicate around 20 to 25 minutes to logical. The moment मेरा ये time exceed होता है, I have to move to the other section no matter what. अगर ऐसा है कि लास्ट के एक दो क्वेश्चंस बचे हुए तो फटाफट उनको सॉल्व करके एक दो मिनट का एक्स्ट्रा टाइम देकर चल जाएगा. बट अगर एक तुम्हारा पूरा पैसेज बचा हुआ है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, मूव टू द अदर सेक्शन. फर्स्ट राउंड में डू द क्वेश्चंस विद द टाइम लिमिट. ठीक है, जैसे ही टाइम लिमिट एक्सीड हो रहा है, मूव टू द अदर सेक्शन. एंड लास्ट का जो तुम्हारे पास सारे सेक्शन अटेम्प्ट करने के बाद लास्ट का जो तुम्हारे पास बफर पीरियड बच जाएगा, उसमें कम बैक टू द क्वेश्चन जो तुमने फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट नहीं किए थे, बट फर्स्ट राउंड में ओनली डू द क्वेश्चंस विद टाइम लिमिट्स. ठीक है. नाउ इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम्हें इसी टाइम लिमिट्स के हिसाब से काम करना है. ये तुम खुद से डिसाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन योर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. जस्ट इंश्योर कि तुम किसी एक सेक्शन में ओवर स्पेंड नहीं कर रहे हो टाइम, जिससे तुम्हारे दूसरे सेक्शन हैम्पर हो रहे हैं. ठीक है. Now, before moving forward, I would like to thank the sponsor of this video. PW CLAT offers new batches for CLAT 2027 and CLAT 2028, CLAT Rises 2027 and CLAT Zenith 2028. इन बैचेस में आपको मिलेगा लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सपीरियंस फैकल्टी विद टॉप नॉच स्टडी मटेरियल्स, mock tests and DPPs for your regular practice and many more things. All that you need to boost your CLAT preparation. And if you're simultaneously preparing for CLAT, ALET or other law entrance tests, then you also have the option to go for their pro batches. Pro batches CLAT Pro 2027 and CLAT Zenith Pro 2028. In pro batches, you will get certain extra benefits. For example, you will get the access to their upcoming batches, printed modules, PYQ books, Khazana package and many more. You can see the prices of these batches on the screen. These batches help you during your preparation by providing you with all the necessary materials that you need and constantly guiding you throughout the process. And if this sounds interesting to you, you can check out their page and explore the courses according to your need. You can use my coupon OYE500 to get extra 500 discount. Links are in the description. Now, mock analysis plays a very important role here. After your mock is done, analyze your mocks and देखो कि मैंने लगभग कितना टाइम हर सेक्शन में स्पेंड किया. अगर किसी क्वेश्चन में या पैसेज में टाइम एक्स्ट्रा लगा तो ये देखो कि क्या टाइम एक्स्ट्रा लगाने से मेरे आंसर सही हुए हैं. इफ़ द आंसर इज़ येस तो यू नीड टू वर्क ऑन योर रीडिंग स्पीड एंड कम्प्रीहेंशन स्किल्स. पर अगर एक्स्ट्रा टाइम देने के बावजूद भी तुम्हारे क्वेश्चंस गलत हो गए हैं तो ये पता करो, एनालाइज करो उसको अच्छे से कि क्यों गलत हुए हैं, मेरे कौन से कंसेप्ट क्लियर नहीं है जिसकी वजह से मेरा टाइम भी एक्स्ट्रा लग गया और आंसर भी गलत हो गया. बिकॉज दिस इज बोथ तरीके से रॉन्ग सिचुएशन. ठीक है, बोथ तरीके से यू आर लूजिंग. ठीक है, तो यू नीड टू फाइंड दिस आउट. While reading a passage, ensure कि तुम एक बार में ही पैसेज को अच्छे से पढ़ लो और समझ लो. This used to happen a lot with me कि मेरे साथ ऐसा होता था कि I used to read the passage, then when I used to solve the question, तो मेरे से क्वेश्चन सॉल्व करते द टाइम मैं पैसेज का की पॉइंट ही भूल जाती थी या क्वेश्चन जिस कंसेप्ट से क्लियर होगा वही भूल जाती थी, जिसकी वजह से मुझे वापस पैसेज जाना पड़ता था और वापस उसको रीड करना पड़ता था. दिस इज़ प्योर टाइम वेस्टेज. ये बिल्कुल भी नहीं करना है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ फर्स्टली व्हेन यू आर रीडिंग अ पैसेज, एक बार क्वेश्चंस को बस ऊपर से देख लो कि क्या है. उसके बाद रीड द पैसेज वेरी केयरफुली. जो इंपॉर्टेंट लाइन्स आ रहे हैं, वर्ड्स आ रहे हैं, उनको अंडरलाइन कर लो. ठीक है, बहुत अच्छे से देखो. स्पीड के चक्कर में कंप्रीहेंशन मिस नहीं करनी है, दोनों को साथ साथ बैलेंस करना है. ठीक है, देन एक बार उसको अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद क्वेश्चन आराम से सॉल्व करो. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. तुम्हें बार बार पैसेज रीड नहीं करना है.
ऑल्सो डू एक्सपेरिमेंट अराउंड द अटेम्प्ट ऑर्डर ऑफ योर मॉक कि मैं पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करूँगी और लास्ट में कौन सा करूँगी। इसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मुझे यही करना है, अगर मैं इससे क्या करती थी तो तुम्हें भी उसी सेक्शन को पहले करना है। एक्सपेरिमेंट करो अपनी कंफर्ट के हिसाब से। मैं अपना फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ दैट आई यूज टू स्टार्ट विथ लीगल बिकॉज इट वॉज वेरी वर्बोस एंड मेरे को अपने स्टार्टिंग का अटेंशन एंड फोकस उसमें चाहिए होता था, तो मैं लीगल से स्टार्ट करती थी। देन आई यूज टू गो सॉल्व जीके, देन लॉजिकल, इंग्लिश एंड मैथ्स। यू हैव टू फाइंड योर ओन, ठीक है, कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या है, उस हिसाब से तुम्हें अपना अटेम्प्ट ऑर्डर बनाना है। यू कैन स्टार्ट विथ एनीथिंग, यू कैन स्टार्ट विथ योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है, कि अगर मैंने अपना सबसे ईजी सेक्शन स्टार्टिंग में सॉल्व कर लिया तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो मैं बाकी का पेपर आराम से सॉल्व कर पाऊंगी। यू कैन स्टार्ट विथ एनीथिंग, जस्ट मेक श्योर कि तुम जो भी अटेम्प्ट ऑर्डर चूज कर रहे हो वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है और तुम्हारे मॉक स्कोर्स को इंप्रूव कर रहा है, ठीक है, दैट्स इट। ऑल्सो इंश्योर कि तुम अपनी सेक्शन जब सॉल्व कर रहे हो किसी भी इंडिविजुअल सेक्शन का, तो उसको भी तुम टाइम लिमिट के अंदर करो, ठीक है। द मोर यू प्रैक्टिस विद इन द टाइम लिमिट द मोर यू विल बिकम बेटर एट इट, ठीक है। जब तुम सेक्शन सॉल्व करोगे तो तुम देखोगे यू विल हैव मोर अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व कि मेरे को एक पैसेज सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, फाइंड आउट करो जितना भी तुम काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू रीड अ न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर को भी टाइम लिमिट के अंदर रीड करो और देखो कि मेरे को एक आर्टिकल रीड करने में कितना टाइम लग रहा है। तो सारी चीज़ों को टाइम लिमिट के अंदर करो एंड यू विल बिकम बेटर एट इट। इट्स फाइन, स्टार्टिंग अभी तुमने किया है, इट्स वेरी नॉर्मल टू स्ट्रगल इन दिस, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है एंड यू विल बी गुड एट इट। ओके, that's all I have to share. Okay, bye bye.